स्ट्रीमिंग ऑन है? करा। हो हो जा जा. ऐसे कुछ नहीं है, तू बैठ जा. क्या है तुम उसको ऐसा कर रहे? अच्छा सुनो, लेट्स स्टार्ट. रेडी है क्या तुम? आर यू ऑल रेडी? कम ऑन कम ऑन. सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. अच्छा सा गुड मॉर्निंग बोलो ना. Yes, okay. So good morning to all the live streaming students and the PD, GD students. Okay. We had finished which topic? Mail writing. We finished ना mail writing. मैंने एक होमवर्क दिया था, बहुत पेंडिंग है, इसलिए मेल राइटिंग का तो तुरंत चेक कर लेते, नहीं तो वी टेंड टू फॉरगेट. चलो मेल राइटिंग का होमवर्क क्या दिया था? कौन सा मेल वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको? विल यू टेल मी विच होमवर्क आई हैड गिवन यू फॉर मेल राइटिंग? ओ माई गॉड, आर यू गोइंग टू टेल मी? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, 2. क्वेश्चन 2 वॉज फॉर होमवर्क. यस. आपको पता है क्या ये होमवर्क के लिए था? आपने किया है क्या? अच्छा, तुम होमवर्क करके आते हो? ओह, लेट्स चेक. क्यों रे? अच्छा, हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Write a mail to Santosh Desai responding to his query about the availability of cosmetics and toiletries in your manufacturing unit Shimmer and Shine. ये तुम्हारे manufacturing unit का नाम क्या है? Shimmer and Shine. And you are talking about क्या क्या cosmetics आपके यहाँ available है. So you are Mr. मनोहर सिंह. आप इस कंपनी के मार्केटिंग हेड हो. ओहो, तुम कौन हो? मनोहर सिंह. You are a marketing head of this company. Gone over. कहाँ तक छोड़ के उसको? You are a marketing head of this company. यही बातें नको, चलो. कौन होमवर्क पढ़ के दिखाएगा क्या मुझे, या एक बुक देगा तो मैं पढ़ लेती हूँ आपकी मेल. अब क्या हुआ? अरे यार. अरे बेटा कौन है, प्लीज उसको लेके जाओ. विल क्लोज द डोर. इसको बाहर लेके जाओ, फिर हम दरवाजा बंद कर देंगे. थैंक यू सो मच. ए वन ऑफ योर स्टैंड. हाँ बस, एक क्लोज द डोर. वो बंद है. ओके. ओ गॉड. ठीक है. व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ डॉग इन द क्लास. ए दरवाजा बंद करो. क्लोज द डोर. अच्छा अभी हम पढ़े क्या? अभी तुम एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डालो फॉर फेस टू फेस स्टूडेंट्स. वेट, द डोर इज क्लोज, वी विल ओपन इट इन नेक्स्ट 10 minutes. Then they'll have to wait outside. No, you have to put a message like this for them, because we are not going to open. We are opening the door, the dog is coming in. Now both the doors are locked. पक्का ना? हाँ तो पढ़े क्या अभी अपन? चलो सुनो, गाइस डोंट टॉक. आई एम जस्ट रीडिंग आउट. एक लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट ने भेजा हुआ है. मैं वो मेल पढ़ के लेती हूँ. वो वाला मेल पढ़ती हूँ. ओके. टू मिस्टर संतोष. टू मिस्टर संतोष देसाई नहीं है. हाँ, राइट अ मेल टू संतोष देसाई. ओके. सो यू राइटिंग अ मेल टू संतोष देसाई, टू मिस्टर संतोष देसाई, CC BCC, subject responding to query about availability of cosmetics and toiletries. So, or informing about the availability of cosmetics and toiletries. Dear Santosh Desai, dear Mr. Santosh Desai, with reference to your mail dated, ये देखो कितना realistic लिखा है. किसने किसका मेल है ये? ध्रुव का है शायद. So see how it's looking realistic. So he is saying this is in response to your mail. किसी ने इंक्वायरी की होगी ना, मेल आया रहेगा. So this is in response to your query about
in response to the mail dated 5th September regarding the availability of cosmetics and toiletries in our manufacturing unit. I would like to inform that the following are available. और उसने 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग किया है, ठीक है. तो पहला उसने लिखा all types of makeup products, glasses, what glasses, hair products, sanitizer, artificial jewelry, perfumes, skin care products, and no, this is all only about makeup here. We are talking only about what? Makeup. So we are just talking about makeup, beta, and at the most a gel or shower gel or a body wash, and you have to say various kinds of lipsticks. We have matte finish lipsticks, 24-hour whatever, some kajal pencils and something like that you will have to mention. ठीक है. Boys, अगर आपको नहीं पता है, get updates from your girlfriends. Okay. I would also like to inform you about a business. I would also like to inform you only after payment. ठीक है कि हम business will be committed only after. हाँ, you can just say order will be confirmed only after making the payment. You can also tell him कि for more details you can visit our website or a request, or we are sending you a catalog. क्योंकि लिपस्टिक बोला तो भी उसमें hundreds of shades are there, so you need to give a catalog. So you say that okay, our website is also there, we'll share with you our catalog also. ठीक है. Yes, so discount हमारा first time offer के लिए 10% discount is there. Delivery will be done after 2 to 3 days. Hey, you wait there only. दरवाजा बंद कर, तुरंत दरवाजा बंद कर. अरे हम दरवाजा ना, वो डॉग आ रहा है अंदर बार बार, इसके लिए क्लोज. वो गारंटी नहीं, वो आता है. दरवाजा बंद कर. नहीं तू बंद कर. कोण आहे अजून? ए तुम जल्दी आओ, दरवाजा बंद करने का. वो डॉग आ रहा है बार बार अंदर. बंद कर. हाँ, वो लेके आइए उसको, डॉग को अपने साथ. बंद है दरवाजा. हाँ, चलो आगे. सो गुड्स आपको डिलीवर होंगे 2 से 3 दिन में. प्लीज फील फ्री इन केस यू हैव एनी अदर क्वेरी. डन. ऐसा ही लिखा है ना आपने, और क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी है, और आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमारे कैटलॉग से आपको मिल जाएगा. चलेगा? चलेगा ना? यस. चलो, नाउ सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक. ठीक है, चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. And we'll start with a new topic of comprehension. कराती हूँ मैं आपको. क्या कराती हूँ? Comprehension. Very simple topic. You don't talk. Resume, report writing, letter writing हो गया ना. चलो ये लिखो पैसेज. ये लिखो कॉम्प्रिहेंशन का 1 डे बिफोर द एग्जाम में लिख के लो. आज कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. कंपलसरी 5 मार्क्स आपके लिए. गारंटीड क्या मिलेंगे आपको? 5 मार्क्स. चलो, ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन का. क्वेश्चन 7 में आता है. दिस इज कॉम्प्रिहेंशन. क्या है इसका? कॉम्प्रिहेंशन. स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. चला नोट करा लवकर लवकर. यस. हो गया लिख के? स्टार्ट करो फिर जल्दी. Note it down fast. I think, is there anybody outside? Can somebody go and open and immediately close the door? Who doesn't get scared of the dogs can go. Go fast. ए जाओ ना कोई तो भी. Open the door and let your friends come in and then close the door immediately.
हाँ प्लीज, आ गए, बस इतने ही है क्या? अब जो लेट है ना, नेक्स्ट टर्न तुम्हारा है, कोई आगे आएगा। एक डॉग बार बार अंदर आ रहा है, इसलिए हम दरवाजा लॉक कर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ी देर से तुम खोलना दरवाजा किसी और के लिए, ठीक है? हाँ, चलो लिख के लो बेटा। इमीडिएटली क्लोज इट है। क्लोज कर दो। No, no, not for that. We didn't close it for you all. There's a dog which is entering inside. अभी 10 मिनट यहाँ पे 2 बार एक डॉग आके गया, तो फिर हम इसलिए दरवाज़ा लॉक कर रहे हैं। हाँ हाँ, सबको लग रहा है कि मैं वो लेट आया और इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया है। चलो लिख के लिया। वो कॉम्प्रिहेंशन के नीचे नोट्स लिखना है 1 और 2। क्या रे? गुरुकुल में ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे ना। बाप रे। चलो अभी डन। नोट्स भी लिखे क्या तुमने 1 और 2? एक बार लिख के हो गया तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। करो एक्सप्लेन। नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग फिनिश राइटिंग बेटा। डन। ओके, अच्छा है क्या? डन कैप्टन, यस बॉस। ओके, अब सुन के लेना। बता दूं, अगर लिख के नहीं हुआ है तो 2 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो। अभी कॉपी तो हो ही जाएगा ना, कॉपी तो हो ही जाएगा, सेम ही बात है ना? तो किसी से फोटो भी हम डाल देंगे ग्रुप पे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ध्यान से सुन के लेना। ये कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है आपको कंपल्सरी फॉर 5 मार्क्स। किस मतलब कॉम्प्रिहेंशन में क्या होने वाला है, सुन के लेना। एक पैसेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? पैसेज। पैसेज दिया जाएगा और उससे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे नीचे। पैसेज है और पैसेज के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। वेरी सिंपल। यू नो व्हाई इट्स सिंपल? बिकॉज यू आर नॉट आस्क्ड योर ओपिनियन। आपको कोई आपकी ओपिनियन पूछ ही नहीं रहा है। देखो, अगर पैसेज किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है या पैसेजेस ऑन G20 समिट, अभी कितना मस्त ये हो रहा है कि नहीं, द G20, तो ये पैसेजेस ऑन G20 के आर्टिकल की कितने लोग आए, क्या अटेंडेंस हुआ, वगैरह वगैरह। नीचे जो क्वेश्चन है वो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और पैसेज से पढ़कर एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट वही वर्डिंग्स ऊपर आपको कहीं ना कहीं पैसेज में मिलेंगे, आपको ढूंढना है। एंड इफ द क्वेश्चन इज ओके देयर वर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स, आपको आपके मन से गेस नहीं करना है,
Do you think it was successful or do you think it is helpful? You feel no, it's waste of money. You feel like that. Nobody is asking your opinion. People are not here, the examiner is not asking your opinion. Examiner देखना चाह रहा है कि आपको पैसेज पढ़ के उसमें से जवाब देने आ रहे हैं या नहीं आ रहे. तो मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? कभी कभी एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है कि पैसेज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है एंड दे गिव यू क्वेश्चन देंगे और 4 ऑप्शंस दे देंगे. चारों ना अगर आप पढ़ोगे ना ऐसे ही जनरल, आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे. अगेन द ट्रिक इज दैट कि चारों ऑप्शन सही है, ये आपकी ओपिनियन है. ऊपर पैसेज पढ़ो और पैसेज में देखो उसके लिए क्या ऑप्शन करेक्ट है, मार्क इट एंड देन यू विल फाइंड एग्जैक्ट पैसेज में आपको वो क्वेश्चन और आंसर ढूंढना है. एक आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, मतलब 2 ही लाइन, ज्यादा नहीं यार क्योंकि 5 मार्क का तो है, आपको 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है गिव अ टाइटल, दे कैन आस्क गिव अ टाइटल. टाइटल शुड ऑलवेज बी शॉर्ट एंड स्वीट. एक हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन, दूसरा टाइप का हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. एक अगर क्वेश्चन और एक आ सकता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है. माने कभी कभी पैसेज में से एक वर्ड दिया जाता है, उसका एंटोनिम और सिनोनिम पूछा जाता है. एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट एंड सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग. जनरली वो पैसेज में आपको बता दूं, थोड़ा सा कभी कभी बाउंसर वाला पैसेज भी होता है, हमें इतना समझ में नहीं आता है. इट्स ओके बट वी कैन स्टिल ओवरऑल पढ़ के ना अपने को टोन समझ में आता है. मतलब आपको पता है कभी कभी आपको कोई सामने वाले की भाषा नहीं समझी पूरी तो भी आपको समझ में आता है वो कुछ अच्छा बोल रहा है या डांट रहा है या कुछ बुरा बोल रहा है. तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी पैसेज पढ़ के भी समझ में आता है कि यार ये बोलना क्या चाह रहे. तो कभी कभी ना आपको पूरे फ्लो में आपको समझना है कि शब्दों की मीनिंग क्या हो सकती है. तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है. अगर आपको कोई वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, एटलीस्ट आप उसको गेस तो करके आ जाना, छोड़ के मत आना. तो एटलीस्ट अच्छा, हर बार मीनिंग पूछेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार मीनिंग पूछेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. एक क्लोज द डोर. हर बार मीनिंग पूछेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, कभी कभी मीनिंग पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली देखो अभी क्या बोला है, हमेशा कैसे करने का. पैसेज जो है क्वेश्चन 7 में आने वाला है, कंपलसरी क्वेश्चन है. पहले ना पैसेज के नीचे के क्वेश्चंस पढ़ के लेने के. पैसेज पढ़ने से पहले क्या करने का, क्वेश्चंस पढ़ के लेने के. सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन आपको पता है अच्छा किस टाइप का आंसर मुझे ढूंढने की कोशिश करनी है. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, ये टाइम सेविंग होता है. पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ो. चाहे तो पैसेज और 2 बार पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Read the passage 2 times and very important, do not give your opinion. Answer should be from the passage. हाँ, अगर specifically पूछा what is your opinion on this, only then you give. Otherwise general question पूछा है, obviously the answer should be from the passage. Are we allowed to do markings in the question paper? No, we are not allowed to do. So please use a pencil. बिना मार्किंग के ना वो आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, पैसेज कभी कभी बड़ा आता है. सो लाइटली एकदम पेंसिल से हल्की सी मार्किंग्स आप करना, पेन से बिल्कुल नहीं करना, अलाउड नहीं होता है. तो पेंसिल से कर दिया तो इफ एग्जामिनर वहाँ पे जो सुपरवाइजर बोलता है अरे क्या चल रहा है, इतना ऐसे कोई बोलता नहीं है, बट बोल भी दिया तो आप तुरंत उसको क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो. ठीक है, तो पहला रीड द पैसेज, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, गो थ्रू द क्वेश्चंस, रीड द पैसेज अगेन, आंसर द क्वेश्चन एंड रीचेक. Title should be related to the main topic if they ask you for a title and it should not be very long. Notes तुमको जो help करेगा, first read the question and then read the passage. Do not give your opinion. Answer should be from the passage. ठीक है, हो गया, मुझे इतना ही पढ़ाना है. अब पैसेज लेंगे और सॉल्व करेंगे, इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है. इसमें मेरा रोल बहुत कम है क्योंकि पैसेज पढ़ना और पैसेज के बेस पे जो क्वेश्चन है वो देना है. देखो जैसे लेटर राइटिंग है या और कुछ है तो मेरे रूल्स होते हैं ना, मुझे सिखाना पड़ता है. यहाँ कोई रूल है क्या, नहीं, रूल नहीं है ना, तो मुझे ऐसे कोई रूल सिखाना नहीं है यहाँ पे आपको. एक्चुअली अभी एक कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज लेते हैं एंड देन वील आंसर इट. समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके चलो अब ओपन करो. आपका देखो कॉम्प्रीहेंशन कौन सा चैप्टर नंबर है बेटा? 3. हेमंत मला ती चेयर लो करून देना जरा. लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट अवर पैसेज. अब मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ ना पैसेज 2, देन यू विल अंडरस्टैंड. कम टू पैसेज 2. इज इट ऑन पेज 60? पहले पैसेज 2 करेंगे और फिर मैं पैसेज 1 कराऊंगी. So come to passage 2 on page 60.
और कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है, वहां पे लिखो रेफर वन डे बिफोर फॉर रूल्स, और कुछ नहीं पढ़ेंगे यहां से हम लोग। डायरेक्टली मैंने वन डे बिफोर में सारा सम अप करके आपको दे दिया है, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक पैसेज पढ़ते और उसके क्वेश्चन आंसर करके देखते। अब देखो, 3 years ago टेक्नोफोबिक, रीड करे बेटा, शुड वी स्टार्ट? यस एवरीबडी, शुड वी स्टार्ट? यार इसको बताओ, सर्कुलर मेमो, एक स्टूडेंट की क्वेरी है, सर्कुलर मेमो लेटर में एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं एब्रीविएशन? एब्रीविएशन कहाँ होते हैं? सिर्फ नोट मेकिंग, एग्जैक्टली। समरी में भी नहीं यूज हो सकते ना, सिर्फ नोट मेकिंग में यूज होते हैं। समझ में आ गया ना? ओके अब देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। डीमोनेटाइजेशन के बारे में बाद में डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाती हूँ अभी, ठीक है। 3 years ago टेक्नोफोबिक, तुमको पता है किसी भी चीज का फोबिया होना। इज एवरीबडी ऑन पेज 60? हाँ चलो, फोबिया मतलब क्या होता है? डर। फोबिया इज अ फियर, लिखो, फोबिया का मतलब होता है फियर। फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फियर ऑफ समथिंग। फोबिया का मतलब क्या है? फियर। ओके, फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ समथिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। 3 years ago टेक्नोफोबिक, टेक्नोफोबिक मतलब somebody who gets scared to use the technology। टेक्नोलॉजी का डर है आपको, यू हैव अ फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो यू कुड बी अ टेक्नोफोबिक, यू आर हैविंग फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। 3 years ago टेक्नोफोबिक सुष्मी घोष refused to exchange her feature phone for a smartphone, but last month the 45-year-old high school teacher ordered a front loading washing machine through an e-retailer app। एक ऐप से उसने वॉशिंग मशीन ऑर्डर किया यूजिंग अ ऐप ऑन हर iPhone। I was pleasantly surprised, she said. It was not only delivered in a day but also installed immediately। So ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन में डिलीवर तो हो ही गया, बट इमीडिएटली उसका इंस्टॉलेशन भी हो गया। आपको पता है ना, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो फर्स्ट टाइम वो आते हैं, आपको उसका डेमो दिखाते हैं, फीचर्स बताते हैं, और फिर वो इंस्टॉल करते हैं। ऐसा होता है सिस्टम, ठीक है। तो शी सिंह, मैं तो इतनी शॉक थी कि एक ही दिन में डिलीवरी हो गई और उसी दिन तुरंत इंस्टॉलेशन भी हो गया। I didn't have to walk to a shop in this heat. I saved some money too because I bought it during a sale. Online sale of large appliances have boomed in the past 2 years as e-retailers have addressed buyers' delivery and installation concerns. While they also offered discounts earlier, delivery took days and installation was another waiting game. तो पहले क्या हुआ करता था? Delivery used to take a lot of time. अरे हमने काम ही नहीं किया, हमने पहले क्वेश्चंस ही नहीं पढ़े। पढ़ू क्वेश्चंस? हाँ, तो अगर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सुषमा घोष says I was pleasantly surprised. So she was, for what reason? तो pleasantly surprised अभी अपन ने ऊपर देखा। दूसरा, some manufacturers have even teamed up with e-retailers. So some manufacturer और e-retailers का कुछ टीम बन गया, ऐसा उसके बारे में क्वेश्चन है। One of the top 3 earners of Flipkart, फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से कमाता है, वो है वन ऑफ द टॉप 3 earners ऑफ फ्लिपकार्ट। द 2 factors that are promoting sales of e-retailers are brick and mortar stores are affected by e-retailers। ऐसे 5 सवाल पूछे गए, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, रेडी है? यहां तक मेरा पढ़ के हो गया है। While they also offered discounts earlier, delivery took days and installation was another waiting game with further uncertainty about warranty. During its recently concluded sale, Amazon claimed in the first day it sold around 20,000 units of average daily TV sales in India. There has been a huge shift in the number of brands that want to do business with us, said Manish Tiwari, VP, Amazon India. Some manufacturers have even teamed up. देखा? ऐसा कुछ था ना? सब मैन्युफैक्चर टीम्ड अप। तो इसलिए बोलती हूँ, आप एक बार अगर पढ़ोगे ना, क्या होगा, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको
क्लिक होता है। और कोई बात नहीं, ऐसे किसी ने बोला है कि आप पैसेज एक ही बार पढ़ सकते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी 2-3 बार पढ़ेंगे, क्या है उसमें, कंपल्सरी है ये, आपको पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे गेन करना है। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, एक आध मार्क का थोड़ा सा कहीं यहाँ वहाँ हो सकता है, वो भी कौन से केस में पता है क्या? व्हेन दे आस्क यू फॉर अ मीनिंग और ऑपोजिट, एक वर्ड होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट अगर हो गया, आपकी अगर वोकेबलरी बहुत अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा मुश्किल जा सकता है, वोकेबलरी अच्छी है तो आ जाएगा, नहीं आता है तो वे गेस करके ही आना है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ना, इफ यू गेट दैट 1 मार्क ऑल्सो, व्हाई नॉट? ठीक है। ओके, some manufacturers have even teamed up with e-retailers to offer TV, refrigerator, washing machine with specific features. तो यहाँ पे एक स्टार मार्क दे दो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है. This helps bring down prices, said Sandeep Karwa, head of large appliances at Flipkart. From being a negligible part of its business, the large appliances category has become one of the top 3 earners for Flipkart. It acquired, yes, top 3 earners of Flipkart के ऊपर भी है. It acquired Jeeves, a repair service and maintenance company for providing after-sales services. At present, Flipkart offers one-day delivery on 72% of large appliances through 10 dedicated warehouses. We are working on a pilot that will enable installation of 70% of a large appliances at the time of delivery, said Karwa. Exchange offers and financing options provided by e-retailers have also pushed the sales. During a last sale, 35% of shoppers opted for no interest EMI, said Karwa. नो इंटरेस्ट EMI. आपको आजकल सीरियसली कितने ऑफर्स मिलते हैं? आप लोग क्या करते हो? आप करते हो ऑनलाइन शॉपिंग? यू लाइक ऑनलाइन और यू लाइक टू गो टू द शॉप एंड देन शॉप? हाँ, गो टू द शॉप फिजिकली, हाँ, ऑनलाइन नहीं, कभी दोनों भी रहते. देयर आर पीपल हु फील कि नहीं नहीं, इफ आई एम बाइंग गारमेंट्स या क्लोथ्स देन आई वांट टू फील हाउ द क्लॉथ इज, ट्राई इट आउट एंड देन टेक अ कॉल. बट आजकल वैसे भी अगर आपने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिया तो एक्सचेंज ऑफर्स, एक्सचेंज पॉलिसी से बहुत सिंपल होती है. तो वॉट एवर इज कंफर्टेबल यू कैन डू दैट. इफ यू डोंट हैव टाइम देन समटाइम्स ऑनलाइन बिकम्स अ ईजियर ऑप्शन. यस, बट अगर आप यहाँ पे हो प्रेस्टीज से तो सारा शॉपिंग बहुत पास में है ना. जाते हो तुम लोग बाजीराव रोड, लक्ष्मी रोड, तुलसी बाग? अच्छा, तू क्या खरीदा है तुलसी बाग में जाके? ओके. आपकी सारी क्लासेस सैटरडे को कहाँ हुई थी? आई वॉज ऑन द वे एंड देन अंकिता कॉल्ड मी अप सेइंग, तो आई वॉज लाइक 15 क्या होता है, आई वुड हैव कम हियर, बट मैंने हेमंत को कॉल किया. हेमंत सर वो न्यू क्लासरूम सेटअप करने को आराम से आधा 1 घंटा जाएगा. तो आई सेड देन देयर इज नो पॉइंट बिकॉज 10 o'clock आई डोंट नो फिर मैथ्स होगा एंड देन मुझे 1 घंटा रुकना पड़ता है आफ्टर योर बैच. आई फिनिश योर बैच एट 10, देन माई लेक्चर स्टार्ट्स एट 11. सो एनीवेज आई एम सिटिंग हियर इन द ऑफिस फॉर 1 hour. तो ऐसे मेरा लेक्चर भी नहीं होगा और मुझे 1 hour ऐसे भी बैठना पड़ेगा. तो आई रिटर्न बैक, तो मैंने गाड़ी टर्न करके फिर मैं घर चली गई. आई केम बैक फॉर द 11 o'clock क्लास. फिर वो क्लास मैंने यहाँ पे ली. फिर बच्चों को यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था. देयर टू मैनी, दे कांट सिट हियर, द एसीज आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग हियर. देन हमने 12 बजे तक मैंने क्लास यहाँ ली. फिर ऊपर का लाइट का इशू सॉल्व हो गया तो 12 के बाद मैंने क्लास ऊपर शिफ्ट कर दी. ऐसा. आपकी क्लास वो कहीं AS फाउंडेशन में हुई थी क्या? पहले तुम ऊपर गए. क्यों, यहाँ क्या था इधर? अच्छा, in 1 hour of class, मतलब no, they had law class here and then we had tax over here for 1 hour and then at 12 we went up. Oh, अच्छा, ठीक है. बट ठीक है, आपकी क्लासेस तो हुई, बाकी की क्लासेस बाद में इधर हो गई ना. हाँ, फिर अकाउंट्स और इको यहाँ पे हुआ, मैथ्स वहाँ हुआ. मैथ्स भी आई थिंक काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ आपका बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट इशू था एंड दैट इंटरनेट के लिए हेमंत टोल्ड मी इंटरनेट कंपनी जो जिसका इंटरनेट कनेक्शन उनका ऑफिस 10 बजे चालू होगा. जैसे मैम आप 9 बजे यहाँ पे आओगे तो भी हम लेक्चर तो कर ही नहीं पाएंगे. सो देन आई सेड ओके, सो आई हैड टू गो बैक. ठीक है, चलो लेट्स रीड.
We are working on a pilot that will enable installation of 70% of our appliances. Exchange offers and financing options provided by e-retailers have also pushed sales. During a last sale, 35% of shoppers opted for no-interest EMIs. Amazon has also created a home service arm to synchronize delivery and installation of products. Amazon's Tiwari said, "We created a group of technicians who will get installation done according to the convenience of the customer. In smaller towns, this is a big help because many brands don't have a robust presence. Amazon has 9 warehouses from which it can reach 80% of the country. Most manufacturers, however, are tight-lipped about online sales as e-retailers discount and freebies eat into the margins of their brick and mortar dealer." What is brick and mortar dealers? I'll tell you. दो प्रकार की दुकानें हैं, ध्यान से सुनना. कितनी प्रकार की दुकानें हैं? दो. एक है ई शॉप्स और एक है ब्रिक एंड मोटर. ब्रिक एंड मोटर मतलब ब्रिक से बना हुआ ये फिजिकल दुकान. इधर आप लक्ष्मी रोड की दुकान में जाइए या आप ऐप पे ई रिटेलिंग शॉप से शॉपिंग कीजिए. सो एक डिजिटल दुकान है इलेक्ट्रॉनिक और एक फिजिकल है. द फिजिकल वन इज कॉल्ड एज द ब्रिक एंड मोटर. तो ब्रिक एंड मोटर मतलब दिस इज द सामान जो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है. तो ये एक फ्रेज है, इस टाइप का फ्रेज यूज किया है. ब्रिक एंड मोटर मतलब फिजिकल शॉप एंड ई रिटेलिंग मतलब ई रिटेल मतलब ऑनलाइन. अगर कोई कस्टमर, देखो ई रिटेलर का क्या होता है बेटा, जब आप उस दुकान में जाते हो वहां पे ओवरहेड्स होते हैं. देखो ना, सुनो ना, क्या होता है वहां पे ओवरहेड्स होता है. मुझे शॉप का रेंट अगर मेरी जगह नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, ओवरऑल खर्चे है वहाँ पे सब मेंटेन करने के लिए. इतनी बड़ी दुकान खरीदे तो उसका भी मेंटेनेंस होता है. या मैंने इतना दुकान खरीदा है तो मैंने लोन पे लिया होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है मुझे. आई हैव टू रिकवर दिस. फ्रॉम whom I am going to recover? From the customer. Do you know how a selling price is determined? You will learn this in costing. देखो आगे. How is a selling price determined? My purchase price of a product. I will add their direct expenses. I will add indirect expenses, मेरे खर्चे. उसके बाद I will add my profit margin. इतनी मेहनत करके हम काम कर रहे हैं तो कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए कि नहीं. तो हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और फिर क्या डिटरमाइन होगा? हमारा सेल प्राइस. यार मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं यहीं से दे सकता हूँ, ये तो मेरे को कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा ना. बट व्हेन आई एम हैविंग अ ई शॉप, आई डोंट इनकर रेंट, आई डोंट इनकर दी सैलरी. यू लाइक समथिंग ऑन द वेबसाइट, जस्ट बाय. आई जस्ट हैव 2 स्टाफ या 1 स्टाफ जो ऑर्डर आएगा फिर वो देखेगा आज की ऑर्डर्स क्या है, एंड ऑफ द डे में वो उस दिन की ऑर्डर्स को पैकिंग करेगा और कुरियर को भेज देगा. तो मे बी आई डोंट नीड, मेरे ना ओवरहेड्स वहाँ पे बहुत कम होते हैं. तो ये लोग ऑनलाइन सेल में आपको बहुत डिस्काउंट्स दे सकते हैं बिकॉज उनका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है. बट जो दुकानदार होता है उसके प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो सकते बिकॉज ही हैज़ टू मीट हिज एक्सपेंसेस. आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको बहुत जल्द इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है. कंपनीज तुरंत बंद पड़ जाती है या चल जाती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी यू यूज़. ठीक है, समझ में आ रहा है. कोविड के दौरान इतने सारे बिजनेसेस बंद पड़ गए, फिर रीस्टार्ट नहीं हो पाए. बहुत सारे बिजनेसेस राइट टाइमिंग और राइट चीज़ों की वजह से चल भी गए. समझ में आता है आपको? यस. सो व्हाट दे ट्राइंग टू से, यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स आर टाइट लिप्ड अबाउट ऑनलाइन सेल्स एज e-retailer discounts and freebies eat into the margins of their brick and mortar dealers. फिर क्या होता है, कोई भी क्या बोलेगा, देखो ये सेम प्रोडक्ट वहाँ पे 100 रुपीज़ के लिए, दुकान में जाओगे तो 150 रुपये के लिए मिल रहा है. तो जैसे कौन दुकान से जाके खरीदेगा, हम ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं, है कि नहीं. तो किसका यहाँ पे वो जो दुकानदार है उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है. While a spokesperson for LG turned down an interview request for this story, Samsung India did not reply to an email. Ajay Seth, director of sales and service at Panasonic India, said it's still early days for online. Customers want to have a look and feel of the product before buying. Most of our online sale consists of small appliances. Companies such as BPL, VU, Woo and TCL, which follow an online first model, are optimistic though of favorable response from buyers. Divita Saraf, founder of Woo Technologies, which sells 40% of TVs sold on Flipkart, said, "When I started selling the televisions, we did a business of 35 crores in 13-14. After going online, oh my God, we ended in 16-17 at 500 crores." So ये आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है, जब ऑनलाइन
मार्केट जस्ट स्टार्ट हो रहे थे तभी का आर्टिकल है, ठीक है। आपको आपका ओपिनियन देना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के एग्जैक्ट लाइन पैसेज में जाके ढूंढ के अंडरलाइन करनी है और फिर ऑप्शन को चूज करना है। सिंपल सी बात है। इज इट वेरी इजी? यस, चलो, विल यू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड कंपल्सरी मुझे आपके पैसेज में मार्किंग चाहिए। तो जैसे सुषमा घोष सेड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज, फर्स्ट वन आई विल डू इट फॉर यू। देखो, सुषमा घोष सेड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज। तुम अगर इंडिपेंडेंटली ए बी सी डी सारे ऑप्शंस पढ़ोगे ना बेटा, आपको सारे सही लगेंगे। आपको लगे ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। देखो, सुषमा घोष was pleasantly surprised. She was surprised by the promptness of the service because she managed to save money by the warranty offered on the washing machine, by the quick and instant installation of the washing machine. She did save money also. बट सुनना, ये सेंटेंस क्या है, ये एग्जैक्ट आपको सेंटेंस ढूंढना है। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। सो सुषमा Ghosh refused to blah blah, it was not delivered. Here it is. I was pleasantly surprised, she said. It was not only delivered in a day but installed immediately. So she was pleasantly surprised कि उसकी डिलीवरी और इंस्टॉलेशन दोनों ही एक ही दिन में तुरंत हो गए। This was her saying about it. So यहाँ पे option D is the correct answer. What did you do? Did you use your brain? No. Did you read the passage? Yes. एग्जैक्ट पैसेज से ढूंढना है और आपको बताना है। समझ में आ गया? चलो, बाकी के सारे आप कंप्लीट करो, देन आई विल चेक इट। कम ऑन। The dog is gone क्या? He's not there outside now. चला गया? एग्जाम में ऑप्शन रहेगा क्या? मैंने पहले ही बोला ना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आइदर एमसीक्यू या आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन देंगे और आपको आंसर लिखना पड़ेगा। बोल दिया ना, ये बिगनिंग में बोल दिया। एमसीक्यू वाला भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव वाला भी आ सकता है, राइटर टाइटल आ सकता है, मीनिंग आ सकते हैं। ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बोल दिया ना बेटा ऑलरेडी। हाँ, some manufacturers have even teamed up with the e-retailers. Oh my god, some manufacturers have even teamed up with e-retailers. ये कहाँ है सवाल? सेकेंड पैराग्राफ, ये देखो, यहाँ हमने स्टार मार्क कर दिया था ना। Some manufacturers have even teamed up with the e-retailers to offer TV, refrigerator, washing machine with specific features. तो कौन सा ऑप्शन है? हाँ, have special, ये बी नहीं, बी, हाँ, विथ स्पेसिफिक फीचर्स, करेक्ट करेक्ट, बी बी। अरे लॉ के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसे। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू ऑल? तुमको पेपर पैटर्न नहीं पता है अभी तक? तो लॉ के पेपर में कहाँ नेगेटिव मार्किंग होता है? Oh God, you have negative marking only in MCQ paper ना? Which papers है MCQ? Maths and Eco. हाँ, यहाँ नहीं है, लॉ में कुछ नहीं है। लॉ ऑलरेडी टफ है यार, डिस्क्रिप्टिव है पूरा पेपर, कहाँ से वहां नेगेटिव करेंगे? One of the top 3 earners of Flipkart is. Top 3 earners of Flipkart is. Oh my God. Oh my God. Flipkart, where is it? कहाँ दिया है? पेज 60 नीचे से थर्ड लाइन। अरे बाप रे, हाँ। टॉप 3, one of the top 3 earners, large appliances category has become one of the
टॉप 3 अर्नर्स, तो फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, तो उसमें से एक कैटेगरी है लार्ज अप्लायंसेस। फ्लिपकार्ट का टोटल अर्निंग में से हमने देखा अरे कौन सी कैटेगरी से सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, सो लार्ज अप्लायंसेस। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। ओहो, इसका आंसर सी आ गया क्या? The two factors that are promoting sales of e-retailers are, the two factors that are promoting sales of e-retailers are, oh my god, two factors that are promoting sale of e-retailers, where? Oh, exchange offers and financing options provided by e-retailers have also have pushed the sale. ये वाला पक्का देखो, yes, the two factors that are promoting sales are, yes, so where A, exchange offers and easy financing options available, बरोबर है का? Brick and mortar stores are affected by e-retailers by eating into their profits. Exact wordings है वहां पे, समझ में आ रहा है क्या? आपका काम है सिर्फ पैसेज को फिर से अच्छे से पढ़ना, उसमें से ऑप्शन चूज करना बेटा और फिर लिखना। समझ में आ रहा है? ओके, आर वी डन विद दिस? चलो, रीड पैसेज 1, रीड पैसेज 1। विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा मैम, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आईसीआई लाइक्स टू गिव सरप्राइज। तुम्हारे साथ आईसीआई का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या कि हम पेपर ऐसे ही पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे? ऐसा कुछ हुआ है? हमारे टाइम तो नहीं होता था ऐसा, तो क्यों तुम पूछते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? जनरली डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, मीनिंग्स एंड टाइटल, आज तक ऑब्जर्वेशन ये है, बट देन कैन दे आस्क यू समथिंग एल्स बेस्ड ऑन द पैसेज? यस, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अपना काम पढ़ाई करना है, पेपर सेटिंग उनका काम है, ओवरऑल आइडिया है कैसा होने वाला है, बस। चलो पढ़ो ये पैसेज, एकदम ध्यान से पैसेज पढ़ो, चलो। तुम्हें लॉ का सिलेबस हो गया? वेरी गुड। अभी एग्जाम ओरिएंटेड, गुड, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल दैट ना। प्लीज ओपन द डोर ना। नहीं, ओके, इट्स ओपन, ठीक है। हो गया, हो गया। व्हाट इज द पैसेज ऑन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, राइट? सो इट इज सेइंग कि अगर आपको जो पैसेज है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो आपको जो मेन टॉप ज्यादा नहीं सोचना बेटा, यू कैन जस्ट से स्पिरिचुअलिटी थ्रू मेडिटेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। दे सेइंग स्पिरिचुअलिटी कैसे अटेंड होता, क्या होता है रियल इस जमाने में स्पिरिचुअलिटी। हम आपको नहीं बोल रहे आप स्पिरिचुअल बन जाओ और सब आपके पास जो है सब कुछ त्याग दो, दैट्स नॉट इट। इट्स अ गुड बैलेंस। डू यू नो वी गेट वेरी 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 इजीली अफेक्टेड
कोई एक our happiness is in somebody else's hand. If somebody comes and says good things to us, we feel happy. Somebody comes and says something bad to us, and then we feel very sad. It shouldn't be like that. Our happiness shouldn't be based on some events, ना. It is like I tell you, आपका पूरा लाइफ स्कैम है. आपको पेरेंट्स ने बोला है 10th पास कर दे, फिर कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है. क्या इंपॉर्टेंट ईयर है? उसके बेसिस पे कि आपका एडमिशन हो गया, फिर आपको आता है 12th स्टैंडर्ड, फिर आपको बोलते बाप रे 12th अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट प्रॉपरली, देन फाउंडेशन, then inter. So it's never ending. Ma'am, will it end after you become chartered accountant? The answer is no, it doesn't end even after that. So there are struggles, there are things that keep on happening. The problems change. Only what happens is with all these things क्या होता है? The kind of problems that you face will be different. ठीक है ना? तो आपको ये समझना है कि काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप फेस करोगे वो सिर्फ अलग अलग होते हैं, बट प्रॉब्लम्स होती है. सो आपको जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. यू शुड डू दैट व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर 14 आवर्स और 15 आवर्स का जब आप टाइम टेबल बनाओगे. आपको पता है मैंने जो एक यूट्यूब पर लेक्चर लिया, इट्स ऑन माई चैनल, हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान. हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान, मैंने एक वहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो किया है, 4-3-3-2. व्हाट इज 4-3-3-2? You have one study session of 4 hours, another of 3 hours, another of 3 hours, and another of 2 hours. ये कितने घंटे हो गए फिर आपकी पढ़ाई? 4 + 3 + 3 + 2 is around 11 hours के आसपास. Somebody who can stretch. What I used to do, I used to try and have 4-4-3-3 करती थी मैं मेरे टाइम में 4-4-3-3. मैं बच्चों को बहुत बार बोलती हूँ कि अगर आपको ना एक आधी घंटा बैठना ना, प्लीज़ मेहरबानी मत करना पढ़ाई के ऊपर, मत ही करो आप पढ़ाई. 1 आवर को स्टडी बोलते हैं क्या? 1 घंटा सीए की पढ़ाई के लिए 1 आवर? प्लीज डोंट डू दैट. संडे इफ यू गेट अप, हैव योर ब्रेकफास्ट, सिट फॉर एटलीस्ट कंटिन्यूस 3 to 4 hours. मैम 3 to 4, हाउ विल वी डू दैट? व्हाई नॉट? यू आर यूज्ड टू सिटिंग इन द क्लास. व्हाट इज, हाउ कैन वी डू दैट? एक मेरे क्लास के और मैथ्स की क्लास के बाद हार्डली 5 minutes का ब्रेक है. बिना RH somebody is talking, don't talk there. बिना ब्रेक के आप पढ़ सकते हो बिल्कुल. 3 to 4 hours आप डिसाइड करो. इफ आई एम गोइंग टू सिट नाउ, आई एम गोइंग टू सिट फॉर द नेक्स्ट 4 hours. फर्स्ट हाफ डे में आपके आधे दिन में 4 घंटे की पढ़ाई हो जाती है आपकी. आपको मोमेंटम मिलता है. आप डे ही ऐसे स्टार्ट करते हो, आप क्या करूँ, आज क्या पढ़ूँ, आज ब्रेकफास्ट पे क्या बनाया है, मम्मी ने ये बनाया, फिर जाके कुछ तो लेके आता हूँ. ये डोंट डू दिस. ऐसे नॉनसेंस जैसे पढ़ना है तो मत पढ़ो. गेट अप, sit down and study for 4 hours. What you're going to study next day should be planned 10 days before you sleep. Go to sleep on the 1 day earlier. आपको पता होना चाहिए कल संडे, कल कोई क्लास नहीं है, कल मैं उठ के 4 घंटे बैठ के ये फलाना टॉपिक खत्म करने वाला हूँ. ये प्लान करके सोना है. उठ के तुम आधा 1 घंटा तो डिसाइड करते हो कौन सा चैप्टर, अच्छा ये चैप्टर पढ़ना है, फिर उसकी नोटबुक खोलते तो ध्यान में आता है इसकी तो 4 प्रॉब्लम मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो उस दिन क्लास अटेंड ही नहीं किया, मैंने होमवर्क ही नहीं किया. फिर तुम दोस्त को फ़ोन करोगे, अरे फिर वो क्या हुआ, ये मेरे को सोल्यूशन की बुक दे दे, भेज दे, हो गया. फिर दोस्त कुछ तो और बोल देगा, फिर आप भूल ही जाते हो आप क्या करने के लिए बैठे थे. डोंट डू दिस नॉनसेंस. पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, वरना वो 1 घंटा और आधे घंटे की मेहरबानी मत करो. समझ में आता है? तो इफ यू सिटिंग ऑन अ संडे, यू वॉच दैट स्टडी प्लानर का जो मैंने दिया, हाउ यू कैन अचीव. एटलीस्ट मैंने वहाँ पे 11 बोला है. सो आई रिमेंबर माई स्टडी डेज. आई हैव स्टडीड फॉर 14 hours, 15 hours ऑन अ पर्टिकुलर डे, 14-15 hours एंड 11 hours जो भी मैंने दिया है ना आपको स्टडी प्लान, उसमें प्रॉपर ब्रेक है. देयर इज टाइम फॉर नैप, देयर इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, देयर इज टाइम फॉर योर एक्सरसाइज, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग इन दैट. ओनली थिंग इज यू नीड टू प्लान. आप सोचते ज़्यादा हो और एक्शन आपकी बहुत कम होती है. दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है ना? चलो, सो स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो आप टॉपिक क्या दोगे बेटा इसका? इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन. या यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन. किसी को और कुछ देना है क्या टाइटल? spiritual life. Yeah, you can say spirituality through meditation. स्पिरिचुअलिटी थ्रू मेडिटेशन. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ये मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी है.
जहाँ पे आपको अच्छा वर्क, अच्छा बैलेंस अचीव करना है इन मटेरियल वर्ल्ड। वी आर नॉट सेइंग बी स्पिरिचुअल, मेडिटेशन करो, मतलब आपको ये नहीं बोल रहे कि आप सब त्याग करके सिर्फ पूरा दिन कुछ नाम जप करते बैठो या ऐसा कुछ करते, नथिंग लाइक दैट, बट यू हैव टू गिव दैट मेडिटेशन। तो उससे आपको जो एनजाइटी आती है ना, वरी या टेंशन आता है, वो कम आएगा। टेंशन और वरी सबको आती है, मतलब यू कांट से कि किसी को टेंशन नहीं आता है ना, एवरीबडी गेट्स टेंशन, दैट्स नॉर्मल, दैट्स ओके, ठीक है। अब देखते हैं, एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन 2 to 3 लाइन्स। सो कम ऑन, लेट्स राइट द आंसर इन द नोटबुक। आंसर नोटबुक में लिखते हैं। टाइटल, आपको जो टाइटल पसंद है आप वो दे सकते हो। पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, यस दैट्स ऑल्सो नाइस, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। टाइटल मैंने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, आपको जो पसंद है आप वो लो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी थ्रू मेडिटेशन, थर्ड आई विल से पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। आपको जो चाहिए आप ले लो। Everybody can have a separate title, there's just no problem. Are we done? Oh, are we done writing the title? Any title that you want better, you all can give a title. चलो अब लिखते हैं, एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन 2 to 3 सेंटेंसेस। मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, एक बार मुझे पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ नथिंग बट टू लिव सेंसिबिलिटी, वी हैव अराउंड अस इमीडिएट रियलिटी, लिविंग सेंसिबिलिटी एंड मोक्ष के बारे में बोला, अरे बाप रे। चलो दे दूं अभी, रेडी, लेट्स राइट। स्पिरिचुअलिटी द सोर्स टू स्ट्राइक बैलेंस, दैट इज ऑल्सो गुड। चलो कितनी लाइंस में बोला है अपने को? 2 to 3 सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा लिखना है क्या? नहीं, बट कैन वी से दैट स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है? वाई? फॉर वॉट? इट इज वेरी इसेंशियल फॉर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन योर मटीरियल लाइफ, ओके। It is very much important to live life sensibly. What is living life sensibly? That you must have a good balance between your material life. मतलब काम कर रहे सिर्फ काम कर रहे नहीं चलेगा। You've not given time to your family, not given time to your friends. What is the use of such kind of a life? So spirituality is the way to achieve a sensible life, which means striking a good balance. So let's write down. Spirituality can help us to live life sensibly and achieve. Spirituality will help us to live life sensibly and achieve a right balance right balance with material life. करेक्ट। और ये स्पिरिचुअलिटी अचीव करने के लिए हमें हेल्प कौन करेगा?
मेडिटेशन। तो एक हाथ 2 लाइंस मेडिटेशन के लिए, उन्होंने 2 या 3 लाइंस ही बोले हैं, ज़्यादा नहीं बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए क्या बोला है उन्होंने, that meditation is a must even to live our life sensibly, but mere meditation won't help us. So basically अगर आपको ये सब करना है, ये गोल अचीव करना है, तो किसके थ्रू कर सकते हैं, मेडिटेशन। सो फ्रॉम नाउ ऑन दिस इज रियली वेरी नाइस स्टूडेंट्स। ऐसा एक आध दिन, एक वीक तो जाना चाहिए जहाँ पे आप कंप्लेन नहीं करते। डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, it will make a lot of difference. See, so stop complaining, grumbling, feeling disgusted with systems. Let us begin with channelizing this light, and you have to stop complaining about others. Sometimes by mistake also we grumble about and condemn ourselves. So they are saying कि meditation will help you achieve this balance, ठीक है। एंड और क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट थिंग्स बट वी शुड चैनल द लाइट इन द राइट डायरेक्शन। हमारी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में आप चैनलाइज करो, ठीक है। चलो, सो लेट्स राइट डाउन। मेडिटेशन विल हेल्प अस achieve this balance. Meditation will help us achieve this balance. We must not complain or grumble. And channelize our energy in right direction. And channelize our energy in right direction. Is it okay? And channelize our energy in right direction. ठीक है, बस इतना ही। अच्छा, मेरे लिखे हुए सेंटेंसेस और आपके लिखे हुए सेंटेंसेस अलग हो सकते हैं, हाँ। ओके, लेट्स टेक अ 2 minutes ब्रेक। गाना सुनना है तो सुन लो, एंड देन वील डू वन मोर पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन ऑलमोस्ट हो ही गया, और एक हाथ 2 पैसेज कर लेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, कोई गाना लगाने वाला है, ऑक्स केबल है यहाँ पे, कोई गाना गाने वाला है, एनी शायर्स, एनी सिंगर, कौन है? क्यों नहीं? यू सिंग वेल ना, कम देन कम, आजा। हाँ, 2 मिनट सोच कौन सा गाना गाने का, और सोच के आजा। Allow influence of meditation in your daily life. Okay. आज आ रही है क्या तू? सोच रही है कौन सा गाना, सोच लिया क्या? कितना टाइम ले रही है, आजा। एक कॉम्प्रिहेंशन का 1 day बिफोर लिखना बाकी है क्या किसी का? ये तो आज की तारीख में आने वाली है क्या बेटा? नहीं रे, इंग्लिश में किसी को फुल मार्क्स नहीं आते, मुझे भी नहीं मिले कोई इंग्लिश में फुल मार्क्स। क्या बोलता है? हाँ, चलेगा, लेकिन पास होना है। इंग्लिश बीसीआर में थोड़े मार्क्स तो भी लेके आने, तो लॉ में हेल्प करेगा आपको। आजा बेटा, कम।
आज दिन चढ़या तेरे रंग बर का फूल सा है खिला आज दिन। ओ रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले। तैनू दिल दा वास्ता ओ रब आया दर्द नाम पर, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार के। तैनू दिल दा वास्ता हो बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को, रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को, रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। चाहिए जो मुझे कर दे वो मुझको अदा, जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आरज़ू मेरी, उसे अब लगा दे तू गले। तैनू दिल दा वास्ता ओ रब आया दर्द नाम पे, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे। तैनू दिल दा वास्ता ओ आज दिन चढ़या तेरे रंग वर का फूल सा है खिला आज दिन। थैंक यू। Very nice, very nice, very nice. She really sings well, no? Nice voice, very good. Yes, एक गाना सुनना है क्या आपको? और कोई आने वाला है क्या? Any शायर? क्या? कौन? कौन? वो गाना गाती है? आजा। हाँ? नहीं आता है? सबको गाना गाना आता है रे, डर लगता है। मेरे को नहीं आते रे गाने। नहीं नहीं, तुम पहले इंटर में आ जाओ फिर गाना गाऊंगी मैं, ठीक है? अभी नहीं, मेरा गाना सुन के तुम गायब हो जाओगे, इंटर में आओगे नहीं फिर मेरे पास। कौन है रे? तू आजा। गाना सुनना है क्या तुमको? और एक कोई लगाओ ना फिर। चला लवकर करा, फिर मुझे कंटिन्यू एक और पैसेज करना है। ले लूं पैसेज अभी? 1 मिनट का ब्रेक वैसे भी हो ही गया। यस, रेडी? चलो क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज एवरीबॉडी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जोर से तालियां बजाओ। ओके, यस, सो लेट्स गेट डू वन मोर पैसेज ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? सो पैसेज 3 पढ़ते हैं और साथ में कर लेते हैं। मुझे बीसीआर में कितने मार्क्स मिले? मेरे टाइम बीसीआर नहीं था। वी हैड 100 मार्क्स ऑफ लॉ, जैसे अभी आने वाला है। जैसा हमारा कोई भी पेपर एमसीक्यू नहीं होता था। इको वॉज डिस्क्रिप्टिव, मैथ्स वॉज डिस्क्रिप्टिव, लॉ वॉज डिस्क्रिप्टिव विथ 100 मार्क्स ऑफ लॉ, एंड वी हैड अकाउंट्स ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव. So our time foundation was completely descriptive. We didn't have any MCQ questions. So 100 marks of law, 100 marks of eco also full descriptive. अरे एक डांस हो जाए, वाह क्या रे तुम लोग, काय झालं? नहीं, न्यू सिलेबस में इको और मैथ्स इज स्टिल एमसीक्यू ही है। न्यू सिलेबस फाउंडेशन का भी इको और मैथ्स इज स्टिल गोइंग टू बी एमसीक्यू। आपको जरूरत ना पड़े न्यू सिलेबस की, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है और प्रार्थना है। उसके लिए आप मेरा लेक्चर जरूर देख के एक स्टडी प्लान बना दीजिए। दैट प्लान इज एप्लीकेबल फॉर इंटर, फाउंडेशन, एवरीबडी हु इज परस्यूइंग सीए कोर्स. ओके, चलो चला 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 लवकर करा, चला ये पैसेज 3 पढ़ के लेते। ये पैसेज 3 के पहले क्वेश्चन पढ़ के ले क्या? चलो चलो चलो, 6 स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, चलो ऑल चार्ज अप। ये बीसीआर से हमको क्या मिलने वाले हैं? मस्त मार्क्स मिलने वाले, जैसे हम लोग पास हो जाएंगे, ठीक है? यस, गर्व बाद में बताती हूँ, अभी चल क्वेश्चन पढ़ लेते।
We lose privacy on social networking sites because. So basically it's asking about losing of privacy. Cyberbullying is common. ओहो, क्या common है? Cyberbullying. What is negative influence? Negative influence of social networking. Which of the following is not a byproduct of social networking? Which, ये देखो in the passage बोला है, ये बोलने की जरूरत नहीं है. सारे आंसर्स कैसे होने चाहिए? From the passage. From the passage. Which of the following words is most similar to intimidating as used? कौन सा word? Intimidating as used in the passage. देखो मीनिंग पूछा है. अब मीनिंग कैसे गेस करने का मैं आपको बताऊंगी. वील ट्राई एंड गेस द मीनिंग. ओके, ठीक है, चलो अब पैसेज पढ़ ले क्या. लेट्स स्टार्ट. वी द इंटरनेट. आई एम रीडिंग पैसेज नंबर 3. मैं आपको एक पैसेज होमवर्क के लिए दूंगी, कल उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगी. चलेगा? यस. द Internet has changed our world. It has been defined as a worldwide broadcasting capability, a mechanism for information dissemination, and a medium for collaboration and interaction between individuals and their computers without regard to geographic location. Instant communication, ध्यान से सुन तू. Instant communication on various social networking sites is an offshoot of the internet revolution. इंटरनेट अच्छा है, लेकिन उसके साथ अच्छी चीजें भी आएंगी और बुरी चीज भी आएंगी. क्या सोशल मीडिया बुरा है? नहीं बेटा, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो आप कितना यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं. कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, आप कितना उसको यूसेज इंपॉर्टेंस देते हो उसके ऊपर है. Though these sites have numerous advantages तो है ही in terms of connectivity and sharing information, they are increasingly becoming a part of everyday life of people. They are being misused by anti-social elements, terrorist organizations, governments, various institutions, and the public at large. Twitter, Instagram, Snapchat, blogs, WhatsApp, virtual worlds, and specific social networking sites like Facebook are an inseparable part of our lives in the modern world. आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है? नहीं है, सच्ची बोलो. नॉट ऑन इंस्टाग्राम. नो. अच्छा, कितने लोग है इंस्टा पे? अच्छा, इंस्टा पे है लेकिन एक्टिव नहीं है. ऐसे कोई भी? 2 अकाउंट है. अच्छा, इंस्टा पे है पर एक्टिव नहीं है. ओके, ठीक है. पॉसिबल ही नहीं. आजकल तो इवन द स्कूल गोइंग किड्स विल हैव एन इंस्टा. सो माय सन फॉर वन ऑफ हिज बर्थडे ही सेज डोंट गिव मी एनीथिंग, अलाउ गिव मी परमिशन टू ओपन एन इंस्टा अकाउंट. आई सेड ओ माय गॉड, दिस वाज द बर्थडे. सो लाइक बर्थडे है तो क्या चाहिए, तो इंस्टा पे मुझे अकाउंट खोलने की परमिशन दे दो. सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड. मुझे मोबाइल फोन मिला था सीए बनने के लिए, सीए बनने के बाद एज अ गिफ्ट फॉर क्लियरिंग माय सीए एग्जाम्स. सो दैट वाज, देयर वाज नो फोन्स एट दैट टाइम, नो मोबाइल्स वर नॉट देयर एट दैट टाइम. चलो अब सुनते. क्या रे? क्या उसके पास मोबाइल कौन सा है? ठीक है, उसके मोबाइल, लेकिन उसके पास ये भी है, वो सॉफ्टवेयर आता है ना स्क्रीन टाइम, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके सारे एप्स फिर बंद हो जाते, डाउन टाइम होता है ना. Yes, so you need to have it, otherwise there's no control. He's in 9th standard, but now 9th and 10th everybody is having and Insta and the phone and all these things are there. ठीक है, चलो फोकस करते हैं. One of the biggest disadvantages, ओहो देखो, one of the biggest disadvantage is loss of privacy by individuals. क्या है? Loss of privacy by individuals. तो नीचे आई थिंक क्वेश्चन है वहां पे, लॉस ऑफ प्राइवेसी के बारे में कुछ तो है, तो यहाँ पे एक स्टार मार्क दे दो. और कोई नहीं मैम, मुझे याद नहीं रहा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे ना. ऐसा थोड़ी कि एक ही बार पढ़ सकते हैं, है ना. सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आस्क फॉर अ ग्रेट डील ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन. दैट्स अ फैक्ट. एंड it is possible for people in all parts of the world to see that information. There are privacy settings for these sites, but many people are either unaware of them or are careless about guarding their personal information.
Besides, very important, besides the information creates a digital footprint. Do you know, आप अगर जैसे बीच पे चलते हो तो आपके footprints होते हैं, वैसे digital footprints होते हैं. If you have gone on any website, you have left a mark. Google knows, everybody around knows. I'll tell you, none of these things are free. Google is not free. Google gets lakhs and lakhs of rupees, crores of rupees on a monthly basis in the form of advertisement. Google search engine पे आप just try करना, you search for hotels or holidays in Rajasthan and maybe your emails will be flooded with hotel details from Rajasthan. email आपने मांगा नहीं, फिर भी आपको मिल गया. जब आप गूगल पे टाइप करते हो होटल्स इन और हॉलीडे इन राजस्थान, होटल्स इन राजस्थान, तुरंत आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल सर्च इंजिन विल गो टू द कंपनीज, होटल्स जिन्होंने पैसे दिए गूगल को. तो गूगल उनको बोलेगा देखो ये बंदा, ये उसका आईपी एड्रेस है, ये उसका ईमेल एड्रेस है, ये बंदा क्या मांग रहा था, ही वाज सर्चिंग फॉर होटल्स इन राजस्थान. तो अगर 3 या 4 होटल्स ने मुझे पैसे दिए गूगल को, ये इंफॉर्मेशन मैं तीनों चारों के साथ शेयर करूंगी. जो जितना पैसा देगा उतनी इंफॉर्मेशन उसके साथ, या पहले उसके साथ, फिर 2 दिन के बाद दूसरे के साथ, ऐसा होता है. तो आपको तुरंत होटल्स, आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया, अगर इंस्टाग्राम पे आप पर्टिकुलर पोस्ट देखते हो, यू टेक अ पॉज, फिर अगर आपने ना किसी सीए की कोई रील देख ली होगी कि हाउ टू स्कोर, यू विल सी ऑल योर थिंग्स आर अबाउट सीए. इफ यू सी सम रील ऑन झुमका और समथिंग लाइक दैट, और यू सी दिस जवान पिक्चर का आपने कहीं रील देखा और वो आपने, यू स्पेंड टाइम, तो फिर तुरंत आपको क्या आएगा, वही रील्स आएंगी. ऑलवेज इंस्टा, हाउ दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर ट्रैकिंग यू. नथिंग इज फ्री ओवर हियर, नथिंग इज फ्री ओवर हियर, अंडरस्टैंड दैट. ओके, आपने फेसबुक या कहीं पे भी गार्डन्स या ट्रीज प्लांट्स अच्छे दिख गए, आपने उधर पॉज कर दिया, you even waited there for a fraction of seconds. Believe me, the next kind of feed, आपकी जो feed होगी ना, आपके जो feed में post आएंगे और reels आएंगे उससे related ही आएंगे. So this is not happening by magic और ये coincidence नहीं है, ये सब plan किया जाता है. There's a very good documentary on Netflix which talks about Facebook, the social dilemma. Yes, very good. I watched it few years back. It's a very good documentary. पता है वहां पे जो लोग फेसबुक और इसमें काम करते हैं ना, उन्होंने बोला किस प्रकार से होता है. अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं और 2 फ्रेंड्स एक ही लोकेशन पे बाय चांस आ गए, you don't know your other friend is also at the same location and your other friend also doesn't know तुम हो, आपका लोकेशन सेम है तो आपको एक दूसरे की पोस्ट दिखेगी वहां पे. So there are a lot of things. आपको ऐसा लगता है Facebook has hundreds and hundreds of people working. Instagram has a staff working there. So there's a friend of mine, she works with Facebook, and of course now the Facebook owns a lot of other things also. They have this particular thing कि ये इस तरीके से करेंगे, किसकी पोस्ट आपको दिखनी चाहिए. आपने अगर किसी पोस्ट, बंदे की पोस्ट को लाइक कर दिया है, फ्रेंड्स है, I have hundreds of thousands of friends on Facebook, बट मैंने उसमें से सिर्फ 4 लोगों की पोस्ट पे लाइक किया है, you will tend to see their post frequently. This is not a coincidence. This is all planned. This is all done on Facebook. You must not now, but when you get time, you must watch that documentary on the social dilemma. Very nice documentary. आपने बिल्कुल वो देखना चाहिए, ठीक है. और कोई भी चीज़ फ्री नहीं है जो आपका टाइम लेती है. It costs you your time. It's not free. समझ में आता है? Yes. There are innumerable examples of sexual exploitation of young boys and girls on social media. Inappropriate photograph, messages, private content that they shared on the site is used to blackmail them. Numerous instances of pictures, ये काफी common होता है, pictures being morphed, used to ruin the reputation are being reported. Sexual predators make fake profile, befriend young people. I read an article somewhere, one lady, she was married and she went to Pakistan and she got married to somebody जो उसका friend Facebook पे बन गया था. So she traveled all the way there and she got married to that person. I mean, I don't know what people are into, so much into this social media, and they're taking such decisions just on the basis of a friend request and chatting on Facebook or just Snapchats or Insta or whatever. है ना? अब देखो,
Cyberbullying has become a common phenomenon. I think cyberbullying पे भी एक question है. Cyberbullying has become a common phenomenon on social network. Almost all teenagers admit to being a target of such bullying at least once in their lives. People are abused, reviled, mercilessly teased. Being malicious, unkind, cruel is the fun for some people. Other use the medium to send an देखो intimidating का word पूछा था ना meaning. देखो others use the medium to send intimidating message, start a nasty rumor or upload embarrassing photos. Others use this medium to send intimidating message, start a nasty rumor और अपलोड एम्बैरेसिंग फोटो. मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, इंटिमिडेटिंग की मीनिंग कुछ अच्छी नहीं है. ये अच्छा बात नहीं, बुरी बात है. नेस्टी रूमर्स, एम्बैरेसिंग फोटोज, उसके साथ ये लिखा गया है, माने ये अच्छी बात नहीं है. ये कौन सी बात है? बुरी बात है. तो अगर आपको 4 मीनिंग के ऑप्शंस दिए, इंटिमिडेटिंग, अगर आप इंटिमिडेटिंग देखो, टू बिकम पर्सनल, to be too friendly, it's definitely not to be too friendly. To become personal, to frighten or threaten someone, or to get intimate. To get intimate with someone is to get physically close. Intimate is different and intimidating is different. Okay, intimate is to get physically close to someone. Intimidating is to frighten or scare किसी को डराना. एक चीज आपको बोलती हूँ, साइबर बुलिंग मतलब क्या? किसी ने पोस्ट डाला, आज कोई भी सेलिब्रिटी कोई भी पोस्ट डालता है, अरे ही इज फ्री टू हैव हिज ओन ओपिनियन ना. वो 10 लोग उसको ट्रोल करते उधर, काय को? आज अनोनिमस है इसलिए ट्रोल कर सकते, सामने जाके बोलने की हिम्मत है क्या? वाई यू ट्रोलिंग टुडे? वाई? अगर आपको कुछ किसी के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है तो बात ही मत करो. अगर आपको आपका मुंह खोलना है तो कुछ अच्छा बोलने के लिए करो, नहीं तो यू स्टे साइलेंट ऑन इट. यू डोंट लाइक व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, कीप क्वाइट. यू लाइक इट, अप्रिशिएट द पर्सन, बट कभी भी किसी के लिए नेगेटिव क्यों? क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, आई एम एनोनिमस, आई हैव दैट पावर. इट्स टोटली रॉन्ग. इट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड इन लाइफ. साइबर बुलिंग से लोगों को अफेक्ट होता है. दे आर ह्यूमंस. फॉरगेट सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज आर यूज्ड टू इट. किसी एक बंदे ने भी अपना फोटो डाल दिया, कुछ डाल दिया, एंड समबडी टॉक्स बैड अबाउट इट, अ पर्सन गेट्स अफेक्टेड बाय इट. यू मे नॉट रियलाइज, बट एक नेगेटिव कॉमेंट से किसी को बुरा लग जाता है. आपको पता है, जब स्कूल में आपको कोई टीचर डांटती है तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, या टीचर ने आपको कुछ अच्छा बोल दिया तो आपका पूरा दिन बन जाता है कि नहीं? तो वैसे ही होता है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, पीपल आर इमोशनल, यू डोंट हैव टू ट्रबल देम बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ साइबर बुलिंग. सो साइबर बुलिंग के बारे में आगे देखते हैं. इट्स पॉसिबल टू कंप्लीटली बी अनोनिमस. आप अनोनिमस हो इसलिए आपको लगता है मैंने नाम भी दूसरा ये यूज किया है, मेरा ईमेल में फेक अकाउंट मैंने कर दिया, या 2 अकाउंट है मैंने दूसरा नाम यूज कर दिया है, नोबडी नोज माई नेम. सो आपको लगता है आई एम अनोनिमस. अनोनिमस मतलब आपकी आइडेंटिटी नोन नहीं है. अनोनिमस मतलब आपकी आइडेंटिटी इज नॉट नोन. देर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट. सच बुलिंग कॉजेज लास्टिंग physiological damage, psychological damage to the victims. Many have known to taken the extreme step of committing suicide. Another problem that has been highlighted by the psychiatrist is internet addiction disorder. किसको है internet addiction disorder? Anybody in the class? Ma'am, we don't have the time. We're doing classes right now. आया नहीं है वो? ठीक है. Internet addiction disorder. Many people literally live out their lives on social media. Every event and happening has to be shared on Facebook. Yeah, many people have that. Every event and happening has to be shared on Facebook. Their lives revolve around number of likes and comments they get on their post. Unfortunately, many of these comments are insincere and fake, thus giving the individual incorrect perception of himself. आपके फेसबुक पे या इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स है वो डिसाइड नहीं करता आपके लाइफ में ट्रू फ्रेंड्स कितने. ट्रू फ्रेंड्स वही है, जब आप प्रॉब्लम में हो तो आप उसको बिंदास कॉल करके बुला सकते हो और बोल सकते हो यार आई एम इन अ प्रॉब्लम, कम एंड हेल्प मी. कैन यू डू दैट टू ईच एंड एवरी फॉलोअर और योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक? नो, यू कांट डू दैट. ऑलवेज रिमेंबर योर फ्रेंड्स, फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो लोग होते हैं आपके लाइफ के वो होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स. दे विल ऑलवेज बी देयर विथ यू थ्रू बैड टाइम्स और थ्रू गुड टाइम्स. Moreover, this addiction consumes a lot of time which could productively be used for the benefit of body and mind. Contrarily, interacting on internet is also have cause, लिखो ये सर्कल करो, loss of social skills. इसको स्टार मार्क दे दो. Loss of social skills. Many people feel comfortable chatting with person online, but in a face-to-face verbal conversation they're not comfortable.
More importantly, you can do all kinds of things you never do in real life, like giving hugs and kisses to everyone. हम emojis भेज सकते हैं hugs and kisses के, but we don't do that in real life, which you would rarely do in real life. And you can give yourself a completely unique identity. There on the Insta and all, you'll show us how cool I am, or but in real life I may not be that cool. I may get scared to come here and talk. I may get scared to socialize. I may get scared to go and tell the real thing. Sometimes people start to prefer their fake online lives to the actual, and this is when social networking sites start to negatively affect social skills. Another issue gaining ground is spreading of fake news. Very true. Enormous amount of information on social, political, economic, health related information is available on various sites. There are serious social ramifications of circulation of such false information. Government is making attempts to bring in laws to control this phenomenon. In conclusion, the advice is that, like everything else, use social media in moderation and with wisdom. तो थोड़ा सा कम यूज करो, moderate यूज करो. ठीक है, चलो आंसर 1 to 5 है. 5 minutes है, we'll be able to finish this. आंसर 1 to 5. चलो बेटा जल्दी आंसर करो. पैसेज में से ढूंढो और फिर आंसर करो. Finish all 5, come on. अरे बेटा तेरे को सीए करना है ना, थोड़ा सुबह उठना पड़ेगा यार. बोलता है आप सुबह क्लास ले रहे हैं, मैं लेट उठता हूँ, मेरी मिस हो जाती है क्लास. आप आफ्टरनून में आओ. चलो डन है क्या? हो गया? करूँ डिस्कस? करूँ? ओके चलो. फर्स्ट, we lose privacy on social networking sites because B. Sites require us to share a great deal of personal information. As it is दिया है वहाँ पे. As it is दिया है वहाँ पे. Yes. So loss of privacy because social media asks for lot of personal information. Correct. Second, cyberbullying is common because there are many bullies everywhere. People are mean. It's easy. It's quick and easy to post nasty anonymous comments on social media sites. So the answer is, oh my god, answer is D. समझ में आ गया? What is the negative influence of social, as per the passage? सोशल नेटवर्किंग के बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, बट पैसेज में यही शब्द देखो और वहां से ढूंढो. तो थर्ड का आंसर क्या है? इट कैन लीड टू लॉस ऑफ सोशल स्किल्स. यस. Which of the following is not a byproduct of social networking? Not. Sexual predatory is not a byproduct. Damaging social skills, ability to make great friends and waste of great deal of time. क्या आंसर है फोर्थ का? A. Yes. Sexual predatory. In fact, sexual predatory होता है ना, लोग फेक अकाउंट ये करके बी फ्रेंड करते हैं, and then you know that is sexual predatory. It's given ना, sexual predatory होता है सोशल नेटवर्किंग की वजह से. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग? इंटिमिडेटिंग मीन्स टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन. दिस इज द मीनिंग. सो यू हैव टू लर्न. अगर आपके लिए ये नया वर्ड है तो इंटिमिडेटिंग मतलब किसी को डराना, आपके मैसेज से किसी को डराना, या कोई घबरा जाता है आपके मैसेज से, आपने ऐसा मैसेज भेजा है. समझ में आ गया क्या? पक्का? ओके. एक सेकेंड सुनना. कॉम्प्रीहेंशन में बहुत सारे पैसेजेस उन्होंने होमवर्क मतलब प्रैक्टिस के लिए दिए, जैसे कि पैसेज 1 एंड आप 2 करके आना. होमवर्क के लिए आप कर लो. मैं 1 and 2 के आंसर्स आपको दे दूंगी. ये मॉड्यूल के पैसेजेस है. देर आर 6 or 7 पैसेजेस. आप जितने करोगे आपकी उतना अच्छा हो जाएगा. तो 1 and 2 आप ट्राई करो. एटलीस्ट 1 कल के लिए करके आओगे क्या? तो मैं आपको आंसर्स है ना, सारे पैसेजेस के आंसर्स ग्रुप पे दे देती हूँ, या यहाँ पे क्लास में दिखा दूंगी
कि व्हाट आर द आंसर्स। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है, पैसेज पढ़ना और उसका आंसर चूज करना है। इसमें कुछ डिफिकल्ट है क्या? कैन यू मैनेज कॉम्प्रिहेंशन? वन डे बिफोर में आपने लिख के ले लिया है, तो कल मैं एक आध पैसेज होमवर्क वाला एक बार देख लूंगी एंड देन आई स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक। आई विल डू दैट टुमारो। आई विल मीट यू एट व्हाट टाइम टुमारो? 8:30। कल की क्लास कितने बजे होगी? 8:30। So live streaming students, I hope that you are getting up on time and watching my lecture. Yes? Are we done? Chalo. So thank you dear students. Enjoy your day and have a wonderful day ahead. Okay? Bye. Bye bye. Thank you. Thank you so much. फोर्थ का नहीं समझा, एक मिनट बताती हूँ. अमर माझा लेक्चर झालंय. फोर्थ मतलब क्या सोशल नेटवर्किंग की वजह से नहीं होता है, क्या नहीं होता है. सो बेटा सेक्सुअल प्रीडेटरी डेफिनेटली होता है बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्किंग. डू यू अंडरस्टैंड? क्या? हाँ. No, one. What is not a byproduct of social networking? हाँ, sorry. So what is not a by? Social networking की वजह से हमारा time जाता है. That happens. Ability to make friends and damaging of social skills. Sexual predatory is a different thing. वो networking की वजह से नहीं हो रहा है. Social networking मतलब हम सोशल मीडिया पे दोस्त बना रहे, बट हम रियल लाइफ में दोस्त नहीं बना पा रहे. That is social networking means A, B, C and D are all relating to social networking. मतलब सोशल मीडिया पे आप दोस्त बना रहे हो. ये B, C, D उससे रिलेटेड है. सेक्सुअल प्रीडेटरी मतलब फेक आईडी क्रिएट करना, ये अलग है. ये सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है. सोशल नेटवर्क मतलब सोशली ऑनलाइन दोस्त बनाना. ठीक है, उससे आपकी सोशल स्किल्स कम होंगी, आपका टाइम कम होगा, एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स कम होंगे, आपकी सोशल स्किल डैमेज हो रहा है. ठीक है. So are we done? Okay? Yes. Thank you. Bye bye. So live